الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جی ناظرین، وَإِذَا واو پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور زال پر بھی زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لام پہ زبر، قاف پہ پیش، اور قاف کا پیش ہم آگے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے۔ لَقُوا، آگے دال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے، دال کے بعد ہم کھینچیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِي، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، حمزہ پہ کھڑا زبر اور میم پہ زبر، حمزہ کو کھینچیں گے، میم کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد نون پہ پیش اور واو ساکن ہے تو واو مدہ ہو گیا، نون کو بھی ہم کھینچیں گے۔ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، قاف پہ کھڑا کاف پہ زبر اور ساتھ میں الف مدہ ہے، قاف موٹا ہے، اسے ہم موٹا کر کے ہی پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے۔ قا، اس کے بعد لام پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، یہ الف مدہ، یہ واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ قالوا، اس کے بعد اگلے حرف کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، پہلے لفظ کے اینڈ میں واو مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ مد ہوگی، مد منفصل، یہ دیکھیں اوپر نشان بنا ہوا ہے، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قالوا، اس کے بعد میم پہ زبر ہے اور نون پہ شد ہے، میم کا زبر ہم نون کے ساتھ گنا کرتے ہوئے ملائیں گے، اور پھر نون پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ہم کھینچیں گے۔ قالوا آمنا، یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کے لیے ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہمارے پاس الف ہے۔ آگے واو پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زال پہ بھی زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، زال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کھینچ لیں گے۔ وَإِذَا خَلَا، خا پہ زبر، لام پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف، یہ بھی الف مدہ ہے، لام کے بعد ہم کھینچیں گے۔ وَإِذَا خَلَا بعضهم، با پہ زبر اور عین ساکن، با کو عین کے ساتھ ملا لیں گے، آگے غاد پہ پیش ہے، ہا پہ پیش اور میم ساکن ہے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ بعضهم،
वाद को मोटा करके पढ़ेंगे। हरूफ मुस्तालिया है बारुहुम बारुहुम इला बारिन, हमजा के नीचे ज़ेर और लाम पे खड़ा ज़बर, लाम को खींचेंगे। इला बारुहुम इला बारिन, बा पे ज़बर और आइन साकिन, तो बा को इनके साथ मिला लेंगे। और वाद के नीचे तनवीन है, आगे क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से आ रहा है, तो यहाँ पे हम तनवीन के बाद क़ाफ हरूफ मुस्तालिया भी है और हरूफ इख्फ़ा भी है। तनवीन के बाद क़ाफ आएगा तो ये हरफ इख्फ़ा है। यहाँ पे हम तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। इला बारिन क़ालू इला बारिन क़ालू, जी क़ाफ पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा हो गया। आगे लाम पे पेश और वाव साकिन, वाव मद्दा हो गया। दोनों को खींचेंगे। बारिन क़ालू क़ालू, अब ये वाव मद्दा है और अगले हरफ के शुरू में हमज़ा आ रहा है। पहले लफ्ज़ के आखिर में वाव मद्दा, दूसरे के शुरू में हमज़ा आने की वजह से यहाँ पे मद मुनफसिल होगी। इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम की आवाज़ को 4 अलिफ के बराबर खींचते हुए हम हमज़ा अदा करेंगे। क़ालू आतू क़ालू आतू, आगे ता पे पेश, हा पे ज़बर और दाल मुशद्दद, हा का ज़बर हम दाल के साथ मिलाएंगे। आतू हद्दी आतू हद्दी, आगे सा पे पेश, वाव साकिन, ये वाव मद्दा हो गया। सा की आवाज़ को खींच लेंगे। आतू हद्दिसू आतू हद्दिसू, उसके बाद नून पे ज़बर है, हा पे पेश और मीम साकिन है, खींचना किसी को भी नहीं है। क़ालू आतू हद्दिसूनाहुम आतू हद्दिसूनाहुम बिमा फ़तहल्लाहु, बा के नीचे ज़ेर, मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा है। मीम के आवाज़ को खींचेंगे। बिमा बिमा, आगे फ़ा पे ज़बर, ता पे ज़बर, हा पे भी ज़बर, हा को हम आगे हरफ जलालत इसम अल्लाह से मिलाएंगे, तो ये हरफ जलालत इसमें अल्लाह पुर पड़ा जाएगा क्योंकि उससे पहले ज़बर आ रहा है। बिमा फ़तहल्लाहु बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, इन पे ज़बर, लाम पे ज़बर, या साकिन, ये या लीन हो गया, इसको बिल्कुल नहीं खींचना। आगे काफ पे पेश और मीम साकिन है, खींचना किसी लफ्ज़ को नहीं है। अलैकुम अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही, लाम के नीचे ज़ेर और या पे पेश, आगे हा पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा है, इसे हम खींचेंगे। लियुहा, आगे जीम पे पेश शादा आ रहा है और पेश आ रहा है। हा को हमने अब जीम के साथ भी मिलाना है। हरफ मद्दा के बाद हमने हरफ मद्दा अदा करते हुए जीम के साथ मिलाना है। तो पहले जो है यहाँ पे अलिफ मद्दा है, आगे शद है। हरफ मद्दा के बाद शद आने की वजह से यहाँ पे मद लाजिम होगी, इस मद को कहते हैं मद लाजिम। तो ये हमने 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़नी है। लियुहाज्जू, अज्जू नहीं कहना, बल्कि हा को खींचते हुए थोड़ा सा आवाज़ को रोक देना है, तो हमारी शद अदा हो जाएगी। लियुहाज्जू, जिम के साथ आगे वाव साकिन है और जिम पे पेश है, तो ये वाव मद्दा है, जिम को भी हम थोड़ा सा खींचेंगे। लियुहाज्जू लियुहाज्जू, आगे काफ पे पेश, मीम साकिन, खींचना नहीं है किसी को। लियुहाज्जुकुम लियुहाज्जुकुम, अब मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करते हुए बा अदा करेंगे।
लियुहाज्जुकुम बिही, बा के नीचे जेर, हा के नीचे खड़ा जेर, हा को हम खींच लेंगे। बिही कुम बिही इंदा रब्बिकुम, आइन के नीचे जेर और नून साकिन। नून साकिन के बाद दाल हर्फ इख्फा है, तो नून की आवाज़ को हम नाक में छुपा के पढ़ेंगे। इंदा बिही इंदा, आगे रा पे ज़बर, बा मुशद्दद, रा को बा के साथ मिलाएंगे और रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा पे ज़बर है। रब्बी रब्बी, आगे काफ पे पेश और मीम साकिन, खींचना किसी को नहीं है। इंदा रब्बिकुम इंदा रब्बिकुम, यहाँ पे वक्फ है तो हमें वक्फ करने के लिए किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से मीम साकिन मौजूद है, तो इसलिए हमारा वक्फ भी ऐसे ही होगा। इंदा रब्बिकुम अफला, हमज़ा पे ज़बर, फ़ा पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। लाम के बाद को हम खींचेंगे। अफला अफला ताक़िलून, ता पे ज़बर और आइन साकिन, ता को इनके साथ मिला लेंगे। ता, आगे क़ाफ हरूफ मुस्तालिया है, इसे मोटा करेंगे और नीचे शेर है। ताक़ी ताक़ी, आगे लाम पे पेश और वाव साकिन, तो ये वाव मद्दा हो गया, इसे खींच लेंगे लाम के बाद को। ताक़िलू ताक़िलू, यहाँ पे अब एंड में हमारे पास आयत ख़त्म हो रही है और नून पे ज़बर है, तो हम यहाँ पे वक्फ करेंगे, तो इसलिए हमने नून का ज़बर ख़त्म करके यहाँ पे हर्फ को साकिन कर देंगे। तो हर्फ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आएगा, तो यहाँ पे मद आरिज़ होगी। ताक़िलून ताक़िलून, यहाँ पे वक्फ करने के लिए हमने मद आरिज़ की है, ये मद लाजिम है, लाजिम। हर्फ मद्दा के बाद शद आए तो मद लाजिम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, इसे हम रिपीट करते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, आप इसे रिपीट कर लें, क्वाइट की मशक़ कर लें, मद्दात का ध्यान कर लें। अगर आपको सबक की समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।